प्यारे बच्चों, सब मजे में। चैप्टर नंबर 3 रिविजन चैप्टर नंबर 1 रिविजन लेक्चर 3। राइट, करना क्या है आपको? फिर से एक बार करना ये है कि आप ये लेक्चर देख लीजिए, उसमें जितने भी थियरम्स कंप्लीट होते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में उसके सम्स के ऊपर जाए, बढ़िया से आपको सब फॉर्मूला सब डेरिवेशन समझ में आ गए हैं तो सम्स भी इजीली आप सॉल्व कर सकते। सो दैट्स व्हाई ये एक सेगमेंट मैंने ऐड किया कि पूरा का पूरा लेक्चर मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, तो आपको कम से कम तीन लेक्चर का मतलब समझ सकते हो, मैक्स 3 आवर्स, मैक्स बोल रहा हूं, इतने में आपका काम हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट, है ना? ओके फाइन। सो हमारे पास अभी जो लास्ट पोर्शन बाकी वो गॉस लॉ, आपको मालूम है ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है गॉस लॉ। कम से कम इसमें से फाइनल एग्जाम की बात करूं ना तो कम से कम ये चैप्टर में से आपको एक थियरी पूछ सकते हैं, थियरी नहीं तो आपको एक सम पूछ सकते हैं, वो भी छोड़ दिया तो एमसीक्यू तो मिलने ही वाला है, कुछ ना कुछ इसके बेस के ऊपर होता ही है। सो यू मस्ट प्रिपेयर इन अ बेस्ट मैनर, राइट? ओके, सबसे पहले मेरे पास गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है? सो गॉस लॉ इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कुलम्स लॉ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कुलम्स लॉ। कुलम्स लॉ का ये एक पार्ट है, कुलम्स लॉ से ही इसको डिराइव किया जाता है, वो भी है। तो अभी उसको डिराइव कैसे करते हैं? सो चैप्टर नंबर 1 रिवीजन लेक्चर की अब हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिराइव कैसे करते हैं गॉस लॉ वो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, राइट? गॉस लॉ पूछ सकते हैं, पहला क्वेश्चन, डिराइव द गॉस लॉ एंड गिव इट स्टेटमेंट, 2 से 3 मार्क्स। तो सबसे पहले to derive the Gauss law, we are considering a charge which is at the center of this type of sphere. ऐसे एक स्फीयर के सेंटर के ऊपर एक चार्ज क्यों रखा गया है, and we are dealing with this, हम लोग इसके साथ में काम करेंगे। We are taking a smaller surface area over it, like this. The area vector of this surface is in this direction, so you can say that it is ds or you can say that delta s. So this delta s is the smaller surface area. You know very well this is the positive charge. So what about the direction of this one? So इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा ना बच्चों, वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? So the electric field here it is also in the same direction. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में रहेगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में। So what about the flux link with this one? So flux link with the smaller area, you can say that this delta phi it is equal to, you can write this E dot delta S. You know the flux is the scalar quantity and it is the scalar product of these two, electric field and the area. You know very well that electric field E at this distance, what about the radius? This radius is R. So electric field at this distance is given by 1 upon 4 pi epsilon naught, and then it is Q upon R square. So this is the scalar form. Now to write it in the vector form, this is the R vector, sorry R caret. So here the electric field is in this direction, this is the direction of the radius, so that's why it is in R caret. If I substitute this value here, so I just write delta phi, this is equal to E is this one, so it is 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into R cap into delta S. But you see the direction of this R cap and delta S both are in the same direction. Both are in the same direction. So what about the angle? So angle is 0. So here you know that vector A dot vector B is equal to AB cos theta. This theta is 0 and cos 0 is 1. So what can I write? So I can write here delta phi, it is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R square into delta S. So this is the flux link with this smaller area only. Now, if I want to get the total flux with the whole sphere ball round, then this total flux phi is equal to what? So it is the summation of delta phi, right? I have to write here all का मतलब
ऐसे जितने भी छोटे 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 एलिमेंट्स है वो सब लेना है और इसके साथ में जोड़ देना, राइट? सो देयरफॉर यू कैन आल्सो राइट बाय दिस वे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q upon r square and summation delta s। ये समेशन डेल्टा s कितना हो जाएगा? तो ये समेशन डेल्टा s बच्चों हो जाएगा पूरा जो स्फीयर है ना उसका एरिया, और एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 pi r square। So therefore this flux is equal to 1/4 pi epsilon naught q upon r square into 4 pi r square। इसकी जगह पर रखा मैंने, है ना? तो अभी ये 4 pi r square से 4 pi कैंसिल, देन r कैंसिल, तो अभी फ्लक्स का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? q upon epsilon naught, है ना? बस ये q upon epsilon naught हो गया इसका आंसर, फिनिश। ये हो गया रास्ता। इसके साथ में और एक बात हम लोग जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? यू नो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट ds। अभी उसके बाद में जब आएंगे ना एप्लीकेशंस में तब ये यूज करेंगे। यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन डाला जाता है, दिस इज द सिंबल फॉर क्लोज इंटीग्रेशन, पूरा सरफेस आना चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन। अभी इसके साथ में जुड़ी हुई दो चार बातें कर अंदर मेरी और आपकी, लेकिन है गॉस लॉ के साथ रिलेटेड। सबसे पहला, द चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड इज q, इट इज द चार्ज व्हिच इज ओनली इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। ये क्लोज सरफेस के अंदर ही जो चार्ज है वो यही लेना है। अगर कोई चार्ज बाहर होता यहां पर q डैश, तो वो चार्ज यहां पर नहीं लेना है, राइट? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, the field produced here is due to all the charges which are present here। मतलब ये है और कोई भी होगा तो ये सब चार्ज इकट्ठा होकर जितना फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो ये हो जाएगा E। दूसरी तीसरी बात, the surface that we consider it is any arbitrary shape and this shape is called the Gaussian surface। ये क्लोज होना चाहिए कंपल्सरी। शेप कौन सा लेना है? इट्स डिपेंड ऑन यू। अगर आपको यहां पे स्फीयर की जगह पर स्क्वायर क्यूब लेना होता तो सिलेंडर लेना होता यू कैन, बट ऐसा लेना चाहिए जिससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी हो जाए। फोर्थ पॉइंट, हियर इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सरफेस यू आर चूजिंग फॉर इट। कौन सा ले रहे हो इसके ऊपर डिपेंडेंट है ही नहीं। देख लो कहीं पे भी कोई भी सरफेस का नाम नहीं आता। एक और बात, गॉस लॉ से हम लोगों को सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना बहुत इजी रहता है। फिर से सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना गॉस लॉ से बहुत इजी रहता है। लास्ट एंड फाइनल, इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब बोलोगे कैसे? यस, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द गॉस, सॉरी, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ आल्सो। अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं ओबे होता है चार्ज के लिए तो ये लॉ भी सही नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सो दिस आर ऑल रिलेटेड विद द गॉस लॉ। एक और एक सिंपल एग्जांपल हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है, देखो कैसा है। सपोज वी हैव वन सिलेंडर लाइक दिस, ऐसा एक सिलेंडर है हमारे पास, और ये सिलेंडर को ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, राइट? अभी आप समझो कि ये सिलेंडर के साथ में कितना फ्लक्स मिल सकता है आपको। तो ये सिलेंडर के साथ में 3 सरफेस हो सकती है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। सो हर एक के साथ में जो फ्लक्स लिंक होता है वो φ1, φ2, φ3, और फ्लक्स का सिंपल फॉर्मूला ये है E डॉट डेल्टा S। कोई भी क्लोज सरफेस होती है तो उसका एरिया हमेशा उसको परपेंडिकुलर और बाहर की ओर निकलता है। यही बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी। सपोज आई हैव वन स्फीयर लाइक दिस, तो वो स्फीयर का ये पार्ट में कंसीडर कर लो तो यहां से उसका एरिया वेक्टर हमेशा बाहर निकलेगा, जो मैंने यहां पे बताया है। अगेन, फॉर एनी क्लोज सरफेस द एरिया वेक्टर मस्ट बी आउटसाइड ऑफ द क्लोज सरफेस। तो अभी मेरे पास इसका एरिया वेक्टर इस तरफ निकलेगा, इसका एरिया वेक्टर इस तरफ निकलेगा, और इसका एरिया वेक्टर इस तरफ निकलेगा।
तो अभी मैं फ्लक्स φ1 लिखूं तो फ्लक्स φ1 क्या हो जाएगा? सो ये दोनों डायरेक्शन उल्टी है, देखो एक ये है तो एक ये है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं E देन डेल्टा S देन cos 180। cos 180 बच्चों माइनस होता है ना, -1, सो इट इज -E डॉट डेल्टा S। सो ये हो गया φ1। अभी φ2 की बात करूं तो क्या हो जाएगा? यही रहेगा E डेल्टा S cos 0 is 1, so your answer for φ2 is equal to E dot delta S। अभी इसकी बात कर लेते हैं। सो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेक्टर दोनों 90 है, so what can I write? Flux phi is equal to E delta S and cos 90 is 0, so your answer for the flux is equal to E, sorry directly 0 कर देना, cos 90 is 0, so this is the flux 3 and this is the flux 2। So what about the total flux बच्चों? So it is minus E dot delta S, and it is plus E dot delta S, and it is 0. So your answer for the flux is 0 by 2। बस ये बात हो गई, ये बात खत्म हुई है, राइट? So this is all about it। Clear? और कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हैं, राइट? Now we are going to discuss about the applications of the Gauss law। Gauss law की थोड़ी बहुत applications है, चेक कर लेते हैं, then chapter finish। Okay my dear, first application of the Gauss law, पूरा क्वेश्चन यहां पे लिख दिया है ना। Filled due to uniformly long straight uniformly filled due to infinitely long straight uniformly charged wire, पूरा का पूरा बता दिया कि आपके पास क्या है। So first of all we are considering a very long wire like this। This is the infinitely long charged wire, मतलब उसके ऊपर प्लस चार्ज है पहले से। अभी इसके साथ में सिमेट्री चेक करना है बच्चों। सिमेट्री का मतलब क्या होता है समझाता हूं। सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप पॉइंट ये कंसीडर करो या ये कंसीडर करो या ये कंसीडर करो, सभी सेम डिस्टेंस पे होने चाहिए। सपोज ये वायर है, यहां से आर डिस्टेंस, यहां से आर डिस्टेंस, यहां से आर, यहां से आर, पीछे ये तरफ सब साइड के ऊपर अगर आर डिस्टेंस पे है ना बच्चों, तो एक बात समझ लो कि ये सभी पॉइंट्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलने वाला है। क्यों? समझो, देखो यहां से वो बाहर की ओर निकलेगा, पॉजिटिवली चार्ज है, यहां से भी बाहर की ओर, यहां से भी बाहर, यहां सब जगह पे बाहर की ओर चार्ज की फील्ड लाइंस मतलब निकल सकती है। दूसरी बात, इफ यू रोटेट दिस वन, अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट करवाया तो ये पॉइंट पूरा एक सर्कल बनाएगा। साथ में ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो इसके ऊपर दूसरे किसी की इफेक्ट नहीं होने वाली। सो ऑल आर रिप्रेजेंटिंग यू दैट दिस इज द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस। ये डिस्टेंस आर, तो ये साइड में आर, सब जगह पर आर, तो ऐसे पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। सो बाय दिस वे यू आर से दैट देयर इज अ यूनिफॉर्म, दैट मींस इसका यूनिफॉर्म और साथ में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से ये सब के साथ में सिमेट्री बनती है। आई बात समझ? अभी हमारा गोल क्या है? हमारा गोल तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना, बहुत इजी है। मतलब तो पहले हम लोग ये डायग्राम फिर से बना देते हैं लाइक दिस। सो दिस इज द infinitely current carrying wire, sorry not current carrying, it is infinitely charged very long straight wire with the uniform charge density। uniform का मतलब समझ रहे हो ना, कि अगर मैंने यहां पर 1 सेंटीमीटर लिया, वैसा यहां पर लूं, वैसा यहां पर लूं, वैसा एंड पे सब जगह पर चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, और यहां पर आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लाइन चार्ज डेंसिटी, राइट? अभी मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले इफ आई वांट टू यूज द गॉस थ्योरम, then I have to take a Gaussian surface। So I am taking this type of Gaussian surface। मैं ऐसा एक Gaussian surface ले रहा हूं, right? The length of this cylinder is L, the radius of this cylinder is R, and the point P that we want to find out the electric field। और पूरा सिलेंडर जो होगा उसके साथ में मुझे फ्लक्स चाहिए, और फ्लक्स मतलब गॉस लॉ से चाहिए, राइट? ओके, अभी लास्ट टाइम जैसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है। चार्ज यहाँ पर, लास्ट टाइम तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया था ऐसा ही है ना? तो
अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कैसा हो सकता है बच्चों, पता है? This is the positive charge. So what about the electric field here? So you can say that the electric field lines are in this direction. अभी यहाँ पे भी ऐसा, अभी यहाँ पे भी ऐसा. See, all the field lines in this direction as well as in this, as well as in this, as well as in this direction. Right? Now, important बात क्या है? समझो. Important बात ये है प्यारे बच्चों, समझा रहा होगा कि यहाँ पे 3 एरिया मिलेंगे, एक ये सर्कल, एक ये सर्कल और एक पूरा कर्व सरफेस. ये 3 में से किसके साथ में फ्लक्स लिंक होता है वो फाइंड करेंगे और साथ में उसके एरिया के साथ में जाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा. सो बाय द वे, if we want to use the Gauss theorem, then what about its statement? So it is phi is equal to integration vector E dot ds is equal to q upon epsilon. इससे काम करना पड़ेगा. If you don't want to use this one, then this flux phi is equal to, you can say that E dot delta S भी चल सकता है, right? E dot delta S, and it is equal to q upon epsilon. So we are dividing into 3 parts. Number 1 surface, number 2 surface, and the curve surface. It is number 3. थोड़ी देर पहले समझा. What about the area vector for any closed surface? So कोई भी closed surface ले लो, उसका area vector कौन सी direction में मिलेगा? The area vector must be perpendicular to it. So here this is the area vector. This is the area vector and this is the electric field. So both are perpendicular to each other. So what about the flux? So you can say that here for circular area 1, flux phi 1 is equal to E dot delta S. It is equal to E delta S cos 90. Therefore it is 0. Same way here. This one. This is the area vector, same one, delta S, and this is the electric field, प्यारे बच्चों. So therefore, for circular area 2, the flux phi 2 is equal to again E delta S. It is equal to E delta S and cos 90. बच्चों again वो हो जाएगा 0. Now important चीज अभी थर्ड के लिए for area, ये सर्कुलर नहीं है ना, ऐसा कर्व है. For area 3, flux phi 3 is equal to, you can say that it is E delta S. It is equal to, you can say E delta S and cos 0. Cos 0 कितना होता है? 1. क्यों? क्योंकि ये कर्व सरफेस है, देख लो. राइट, उसका एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा बच्चों. So this is delta S and this is E. Right. So this is E into delta S. तो अभी फ्लक्स 3 कितना हो जाएगा? सो फ्लक्स 3 इज इक्वल टू E का वैल्यू तो फाइंड करना है और ये सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर एल. व्हाई? क्योंकि ये तो सरफेस एरिया सर्कुलर में, तो ये हो जाएगा. देन आफ्टर, therefore what is total flux? It is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi 3. So it is 0 plus 0 plus 2 pi RL. And then E तो बाकी रह गया मेरा, है ना? So your answer is E into 2 pi RL. Now you have to use this. ये use करो या ये, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. So therefore this phi is equal to, you can say that E into 2 pi RL, and it is equal to Q. What is Q? Q is the charge enclosed in this one. तो ये चार्ज कितना होगा बच्चों? तो ये चार्ज हो जाएगा लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन. राइट. तो अभी क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो अभी ये हो जाएगा कि चार्ज Q इज इक्वल टू समेशन, और यू कैन से दैट. कैसे फाइंड आउट किया मैंने ये लैम्बडा? देखो, अभी मैं लिखता हूं लेंथ, देन लिखता हूं चार्ज. राइट. अभी लेंथ यूनिट है 1, तो चार्ज कितना है बच्चों? लैम्बडा. क्योंकि लैम्बडा इज द लाइन चार्ज डेंसिटी एंड इट इज सेम फॉर कंप्लीट वायर. देयरफॉर मेरे पास अभी L लेंथ है, तो चार्ज कितना हो सकता है बच्चों? सो दिस इज लैम्बडा. राइट. देन यू कैन कैंसिल दिस L, टेक दिस वन हियर. So therefore you want to find it this E, so it is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught and R. So this is your answer.
अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे कर सकता हूं? सो देयरफॉर दिस E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r इनटू r कैप। सो देयरफॉर इट इज अ वेक्टर। ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, खत्म, है ना। नाउ कई बार सम्स में इसका ऐसा फॉर्मेट भी यूज किया गया है कि 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट था ना, तो अभी मैं स्केलर लिख रहा हूं, तो अभी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, 2 की जगह पर 4 कर दिया, मतलब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो बच्चों क्या हो गया? ये हो गया लैम्डा अपॉन r, राइट, एंड दिस इज r। सो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, अभी क्या हो गया पता है? E इज इक्वल टू 2, ये 1 अपॉन करोगे तो k हो जाएगा, कूलम्ब्स लॉ वाला k, है ना। इट इज लैम्डा अपॉन r इनटू r। अभी इसके ऊपर से फोर्स पूछा जाता है, तो फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट? दिस F इज इक्वल टू Q इनटू E, है ना। तो अभी वेक्टर निकाल देता हूं मैं, तो इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट इज 2kq लैम्डा अपॉन r इनटू r। देखो कूलम्ब्स लॉ से थोड़ा अलग फॉर्मूला मिलता है। कूलम्ब्स लॉ में r स्क्वायर आता था, यहाँ पे r स्क्वायर नहीं है, तो कई बार पूछा जाता है कि फोर्स फील्ड क्या है r के साथ में वेरिएशन। सो इट इज 1 अपॉन r, इनवर्स से, स्क्वायर नहीं है, सिर्फ इनवर्स है, 1 अपॉन r से फील्ड वैल्यू होता है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन 1 मार्क्स, करेक्ट। हर बार मैं बोलता हूं कि बच्चों आप पूरा लेक्चर नहीं देखते हो, पूरा लेक्चर नहीं देखते हो, आपने बताया इसीलिए मैंने ये पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज किया। अगर आप लेक्चर देखोगे ही नहीं, काम करोगे ही नहीं, तो फिर मुझे ऐसे रिवीजन वाले लेक्चर बनाने की जरूरत है या नहीं, आपको ही बताना है, क्योंकि काम करना पड़ता है ना इसके लिए। रिवीजन का मतलब होता है पहले से लेकर लास्ट तक देखो, आपका रीडिंग हो जाता है ये पूरा थियरी। अगर आप बुक में से रीड करते हो, रेफरेंस बुक में से रीड करते हो, तो तुरंत काम खत्म हो जाता है आपका, लेकिन कम से कम पूरा देखना तो पड़ेगा ना। कुछ भी हो जाए, मैं बोल रहा हूं कुछ भी हो जाए, एग्जाम तो होने ही वाली है। कई बार स्पीचलेस हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि आपका जो मतलब काम करने का तरीका होता है ना, समझ में आ रहा है। आप अपनी लाइफ बनाओ यार प्लीज, कॉलेज है, आप एंजॉय करना और स्टडी भी करना, लेकिन यहां पर सिर्फ स्टडी हो सकती है। एंजॉय के साथ में 12th में कभी भी परसेंटेज नहीं आए। काम करो, एक टारगेटेड वर्क, उसके बाद में आप जाओ, बढ़िया से हो जाएगा, राइट। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये सबसे पहले मेरे पास एक प्लेन शीट है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं। कोई बोलेगा सर नेगेटिव लेना है, ले सकते हो, खाली डायरेक्शन फील्ड की ये हो रही है तो उस साइड अंदर हो जाएगी, नेगेटिव लेंगे तो। सो दिस इज द इनफाइनाइट डायमेंशन शीट, प्लेन शीट, चार्ज इज ऑन दिस शीट। नाउ जैसे पहले मेरे पास वायर था इनफाइनाइट, तो मैंने क्या किया था, ऐसा छोटा वाला एक सिलेंडर लिया था जिसकी लेंथ एल थी। दिस इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। नाउ हियर आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस, तो ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है। नाउ सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब आप समझ सकते हो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम। नाउ अभी ये गॉसियन सरफेस ले लिया, ये गॉसियन सरफेस के साथ में कौन सी साइड ऐसी है जिसमें फ्लक्स लिंक होता है? सो टोटल इसके पास 6 साइड है, अपर लोअर, फ्रंट बैक, राइट। ये टोटल 6 साइड में से खाली 2 साइड में ही फ्लक्स लिंक होता है। कैसे मैं समझा? सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये ऊपर वाला एरिया वेक्टर कौन सा मिलेगा? तो ये मिलेगा, यहां पर भी ये मिलेगा। सो बोथ आर इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज परपेंडिकुलर। So flux link with the upper and the lower side becomes 0. हो गया एक बार? सेकंड, फ्रंट एंड बैक की बात करें, सो इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, ये z कंसीडर कर से हो तो ये x हो जाएगा। सो बोथ आर परपेंडिकुलर, सो इट्स रिजल्ट इज अगेन 0।
then the flux is linked just only with this area as well as with this area. It is a positive charge. So electric field direction is this one. So what about the area vector of this one? Again it is in this direction. What about the area vector of this one? Again it is in this direction. See, both are in the same direction. So what about the flux link with this cube? So the flux link with this cube, that you can say that this phi is equal to, you can say that phi 1 plus phi, right? मैं पूरे क्यूब की बात कर रहा हूं, ऐसा समझना. अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इट इज EA प्लस EA, and it is 2EA, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर. दोनों के बीच का एंगल 0, सो cos 0 is 1. दोनों के बीच का एंगल 0, cos 0 is 1. Then after, what is phi? Phi is equal to Q upon epsilon. अभी मेरे पास Q कैसा है समझना है. So अभी मेरे पास ये Q, मतलब ये पूरी शीट में से इतने ही पार्ट का चार्ज ये क्यूब के अंदर आ रहा है. So what is this Q? Q is the charge enclosed by this Q. This Q is the charge enclosed by this Gaussian surface. And what about it? ये कितना हो सकता है? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया और यहाँ पे रखूंगा चार्ज. बच्चों एरिया 1 होता है तब चार्ज होता है सिग्मा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन है चार्ज पर यूनिट एरिया. Therefore मेरे पास अगर एरिया A हुआ तो चार्ज कितना हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सिग्मा इंटू एल दिस इज क्यू. सो इधर मुझे आंसर मिल गया सिग्मा इंटू A अपॉन एप्सिलॉन नॉट. अभी गॉस थ्योरम यूज करते हैं. So according to the Gauss theorem, what can I write? This flux phi is equal to Q upon epsilon naught. तो flux कितना हुआ बच्चों? EA. So sorry, 2EA. And then after this flux Q की जगह पर sigma into A upon epsilon naught. Sigma नहीं, A दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. So E is equal to sigma upon epsilon naught 2B. So this is our answer. सेकेंड चैप्टर में मैंने ही आपको सिखाया है कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलता है. फिर से याद करवा दो, है ना. इसके ऊपर चार्ज प्लस क्यू रहेगा, इसके ऊपर चार्ज माइनस क्यू रहेगा. तो अभी ये प्लस क्यू चार्ज है तो इसकी डेंसिटी सिग्मा रहेगी, इसका माइनस है तो माइनस सिग्मा रहेगा. अभी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में मिलेगा और वैल्यू रहेगी ये वाली. अभी मैं इसकी फील्ड की बात करूं तो इसका फील्ड माइनस है ना बच्चों, तो अंदर जाएगा, यहां से भी अंदर जाएगा और यहां से भी अंदर जाएगा. फिर से एक बार, यहां पे आना चाहिए फील्ड. देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बस यहां से बाहर निकलना चाहिए. देखो निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है. यहां पर दोनों वेक्टर अपोजिट है तो ये हो जाएगा 0. यहां पर दोनों वेक्टर अपोजिट है तो ये हो जाएगा 0. अभी ये दोनों एक डायरेक्शन में है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं E is equal to sigma upon epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught. तो इसका आंसर हो जाएगा sigma upon epsilon, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, एडिशन करोगे तो ये आंसर हो जाएगा. सो बाय दिस वे वी आर यूजिंग इन चैप्टर नंबर 2. कांसेप्ट यहां पे था, यूज वहां पे हुआ है. एक्सरसाइज में एक सम भी है जिसमें प्लस माइनस नहीं है, दोनों प्लस भी हो सकते हैं, राइट. So this is the application to find out the electric field due to the infinite plane set. Last application प्यारे बच्चों, क्या है last application? Field due to uniformly charged thin spherical cell. आपने एक बात नोट की, सभी एप्लीकेशन में ये वर्ड आता है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. तो गॉस लॉ वही एप्लीकेबल होता है और कहीं पे नहीं कर सकते आप लोग. यूनिफॉर्म मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज होना चाहिए. ओके, तीन स्फेरिकल सेल की बात करें ना बच्चों, तो ऐसा है हमारे पास ये स्फेरिकल सेल, राइट, जिसका रेडियस आप बताओ तो r है. इसके ऊपर चार्ज है लाइक दिस और सिर्फ सरफेस के ऊपर चार्ज है. सो सरफेस चार्ज डेंसिटी बन जाएगा C. अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? सो अभी हमारा पहला क्वेश्चन A है आउटसाइड द सेल. आउटसाइड द स्फेरिकल सेल कैसे करेंगे इसके लिए? तो सबसे पहले एज शोन इन द फिगर
there is a sphere of radius r. It is a spherical cell. The surface charge density is sigma. Then after we want to find out the electric field outside, so we have to consider a point which is outside. And for this point, you can say that is r is greater than r. Now I have to consider this type of Gaussian surface. So this dotted sphere is what? It is a Gaussian surface. What about its area vector? सभी जगह पर वो बाहर निकलता हुआ मिल सकता है. Now we apply the Gauss theorem. क्या है हमारे पास बच्चों Gauss theorem? तो Gauss theorem है वेक्टर E dot delta S is equal to Q upon epsilon. मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूं एकदम से. अभी देखो यहां पे लिख सकता हूं E delta S into cos 0. अभी आप बोलोगे सर आपने cos 0 कैसे लिखा? कोई भी एरिया वेक्टर ले लो, यहां पर छोटा वाला देखो ऐसे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों सेम डायरेक्शन में मिल जाएंगे. If it is in the same direction, then this cos is 0. What about the charge enclosed by it? बच्चों Q है ही, है ना. ये बड़े वाले स्फीयर ने अंदर कितना चार्ज रख दिया? तो अंदर जो चार्ज रख दिया वो सिग्मा डेंसिटी वाला चार्ज था, लेकिन चार्ज कितना था? Q था. So it is Q upon epsilon. Cos 0 is 1. Here delta S is the area of a sphere. कितना है बच्चों एरिया? The area of the sphere is 4 pi r square. Right? No, my dear. ये जहां से आप फाइंड करते हो ना, इसका एरिया लेना है, ये वाला. समझो? इसीलिए बच्चों यहां पर मिस्टेक होती है, इसलिए मैंने जानबूझ के रख दिया. आपको लिखना है r square. Then put it here. So therefore it is E into 4 pi r square and it is Q upon epsilon naught. अभी मुझे E चाहिए, so E is equal to Q upon 4 pi epsilon. Then r square. आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो देखा हुआ है. यस, आपने शुरू में ही पढ़ दिया, ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया. ये क्या था? चार्ज अगर एक पॉइंट के ऊपर होता है, ये वाला चार्ज, तो उससे r डिस्टेंस के ऊपर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E जो लिखोगे इसकी फॉर्मूला, तो ये लिखोगे 1 upon 4 pi epsilon not Q upon r. सेम इट इज. मतलब कंक्लूजन क्या निकला बता? Although the charge is on the surface of the sphere, this formula said that it is at the center. मतलब ये पूरा एक्युमुलेशन कहां पर हुआ है बच्चों? सेंटर के ऊपर हुआ है, ऐसा आप बता सकते हो. राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट इट. राइट? दूसरी बात, ये ऐसा बता रहा है यहां पर कि E is proportional to 1 upon r square. मतलब सरफेस से जितना 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 दूर जाओगे ना, ये फील्ड डिक्रीज होता जाएगा. व्हाट अबाउट ऑन द सरफेस? ऑन द सरफेस क्या होगा? ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर क्या होगा? तो सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात करते हैं ना बच्चों. सो E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड स्मॉल r की जगह पर r स्क्वायर. So this is the maximum value. Now second case. Second case की बात करें ना बच्चों, तो क्या होगा पता है? B outside की जगह पर inside the spherical cell. Inside the spherical cell क्या होगा? अभी इनसाइड की बात करते हैं तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इनसाइड की बात करें तो यही स्फीयर मैं ले रहा हूं जिसका रेडियस r है, जिसके ऊपर चार्ज भी Q है बच्चों, है ना? चार्ज भी Q. अभी क्या करेंगे बताइए? अभी हम लोग लेंगे पॉइंट इनसाइड. यहां पर भी r रेडियस, कंडीशन आएगी r is less than r. This r is less than r. So my dear, okay, fine. Now, if r is less than r, r is less than r. So what can I say? अभी मेरे पास यही यूज करना है. So it is E delta S is equal to Q upon epsilon naught. But your answer is 0. अब बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने 0 है? हमको तो समझ में ही नहीं आया. राइट? कैसे कर दिया 0? समझाता हूं. देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले
जो जीरो नहीं है उसका डिस्कशन। एप्सिलॉन नॉट जीरो नहीं, डेल्टा एस इसका सरफेस एरिया, राइट, वो जीरो नहीं है। एंगल की तो बात बाद में आएगी, देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये चार्ज है ना वो जीरो है। क्यों? व्हाट इज दिस चार्ज क्यू? इट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वो लेना है, तो क्यू ले लिया यहाँ पर, बट चार्ज तो यहाँ पर अंदर कोई नहीं है, जो कुछ भी है वो बाहर है। So the charge enclosed by this Gaussian surface is equal to zero. So therefore it is zero. So यहाँ पर रीजन लिखना पड़ता है, Q is equal to zero. Therefore this E is equal to zero. जो एक और बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ नहीं दिया है। Just I draw the graph of E versus R. Electric field of the spherical cell versus R. देख सकते हो सेंटर से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। सो इफ आई ड्रॉ इट देन इट इज लाइक दिस। यहां पर मुझे मिलेगा R इज इक्वल टू R, राइट। देन आफ्टर मुझे मिलेगा यहां पर ऑल ऑफ अ सडन एकदम से राइज ये वाला। ओके, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर मैंने यहां पे गलत कर दिया है। क्या करना चाहिए था बच्चों? R स्क्वायर। ये गलत है ना, कैपिटल आर आएगा बिकॉज ऑन द सरफेस लिख रहे हैं हम लोग, है ना। ओके, यहां पर ई मैक्सिमम हो जाएगा बच्चों, एंड देन आफ्टर माय डियर फ्रेंड्स इट इज डिक्रीजिंग बाय दिस वे। सो हियर इट इज, सो यू कैन से दैट ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और एक बात कर लेते हैं, ये वाले फॉर्मूला में मुझे सिग्मा लाना है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी। बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या? सो मैं यहां पर sigma is equal to q upon a. So it is equal to q is equal to sigma into a. Q is equal to sigma into 4 pi r square. What about this one? So मैं इसको लिख सकता हूँ E is equal to q की जगह पर sigma 4 pi r square. बच्चों divide by 4 pi epsilon naught and then r square, है ना। ये दोनों कटिंग शटिंग और ये दोनों फिर से कटिंग, therefore E is equal to sigma upon epsilon. क्वेश्चन यही हो जाएगा। ऑन द तीन स्फीयरिकल सेल, स्फीयरिकल सेल के ऊपर की बात करते हैं तो ये हो जाएगा। That's it. आई बात समझ में? तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है, लेकिन ये वर्ड सुनने के लिए, सेंटेंस सुनने के लिए आपको लास्ट तक आना पड़ता है ना। फिर से बोल रहा हूं, तीनों के 3 लेक्चर फिर से देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा बच्चों। प्लीज प्लीज बोलो।